ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ આપણી વચ્ચે દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ દ્વારકા શંકરાચાર્યના પીઠાધીશ્વર ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। ફરીથી યાદ અપાવી દઉં, ફૂલ આપણે એમના ચરણોમાં અર્પણ કરશું, ફૂલ આપણે એમના ચરણોમાં અર્પણ કરશું। કોઈ રેલિંગની બહાર આવશે નહીં, ફૂલ આપણે એમના ચરણોમાં અર્પણ કરશું। ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ શ્રીનું આપણે સ્વાગત કરીએ। કોઈ રેલિંગથી બહાર નહીં આવે, કોઈ રેલિંગથી બહાર નહીં આવે। ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર। सावधान! धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज पधार रहे हैं। आज से पधारिए कृपा निधान। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय। सावधान! धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज पधार रहे हैं। आज से पधारिए कृपा निधान। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। धर्म सम्राट जगद्गुरु द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय। ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત। સૌ પ્રથમ આપણે મંચ ઉપર જે બિરાજમાન સંતગણ છે એમનું પણ અભિવાદન કરવાના છીએ, એટલે આપણે પહેલાં અભિવાદન કરશું સંતગણનું, પછી પાદુકા પૂજન થશે ને પછી પ્રવચન આપણે સ્ટાર્ટ કરશું। તો જે મંચ ઉપર બિરાજમાન છે, સૌ પ્રથમ તો જેમની આપણે રાહ જોતા હતા, જેમના આશીર્વચન આપણે આજ પ્રાપ્ત કરવાના છીએ, એવા દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યજી સ્વામીજી મહારાજ શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજના અભિવાદન માટે હું વિનંતી કરીશ શ્રી ભવાનભાઈ ભરવાડ, શ્રી બાબુભાઈ જે દેસાઈ, શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ, શ્રી રાજ શેખાવત સાહેબ, શ્રી શ્યામાભાઈ દામોદરભાઈ મોદી, શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ, શ્રી જયંતિભાઈ ગજ્જર ને શ્રી જયરામભાઈ દેસાઈ। આટલા લોકોમાંથી જે લોકો ઉપસ્થિત હોય એ ભગવાન શંકરાચાર્યનું અભિવાદન સ્વાગત કરવા માટે આવશે। શ્રી ભવનભાઈ ભરવાડ, શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, લાલજીભાઈ પટેલ, રેખાબેન દેસાઈ, મુદ્રાબેન આચાર્ય અને રીટાબેન શુકલ, લાલજીભાઈ પટેલ, રાજ શેખાવત સાહેબ, સોમાભાઈ મોદી, અશ્વિનભાઈ પટેલ, જયંતિભાઈ ગજ્જર અને જયરામભાઈ દેસાઈ।
તાળીઓ સાથે આપણે સૌ તાળીઓ સાથે અભિવાદન ઝીલીએ. ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું અભિવાદન થઈ રહ્યું છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય મહારાજની, ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજની, ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજની. જગતગુરુ ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજ સ્વામીની જય બોલાવી આપણે બધા એક સાથે જોરદાર જયઘોષ કરીએ. જગતગુરુ ભગવાન શંકરાચાર્યજી મહારાજની. પરમ પૂજ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી હરિહરાનંદ ભારતીજી મહારાજ શ્રી 1008 ઉપસ્થિત હોય ત્યારે એમના અભિવાદન માટે હું ઘનશ્યામભાઈ વણોદિયા, શ્રી પરેશભાઈ છનિયારા, શ્રી હસમુખભાઈ પનારા, શ્રી જગદીશભાઈ જાદવાણી, શ્રી રાકેશભાઈ ગુજારિયા, આ નામોમાંથી જે સભ્યો ઉપસ્થિત હોય, શ્રી ઘનશ્યામભાઈ વણોદિયા, શ્રી પરેશભાઈ છનિયારા, શ્રી હસમુખભાઈ પનારા, શ્રી જગદીશભાઈ જાદવાણી, શ્રી રાકેશભાઈ ગુજારિયા, એમને વિનંતી કરું કે આપ મંચ ઉપર પધારી અને શ્રી હરિહરાનંદ ભારતીજી મહારાજનું અભિવાદન કરશો, સ્વાગત કરશો. આપણી વચ્ચે શ્રી થાનાધિપતિ શ્રી ઈશ્વરાનંદ ભારતી બાપુ ઉર્ફે એકા બાપુ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એમના અભિવાદન માટે હું ઘનશ્યામભાઈ વણોદિયા, અજીતભાઈ પટેલ, શ્રી અમરીશભાઈ શાહ, કેતનભાઈ શાહ, શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ ઝાલા અને રોહિતભાઈ ઠાકોર ભામાસા એમને વિનંતી કરીશ. થાનાપતિ શ્રી ઈશ્વરાનંદ ભારતી બાપુ ઉર્ફે એકા બાપુનું સ્વાગત કરશે શ્રી ઘનશ્યામભાઈ વણોદિયા, શ્રી અજીતભાઈ પટેલ, શ્રી અમરસિંહભાઈ શાહ, શ્રી કેતનભાઈ શાહ, શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ ઝાલા, શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકોર. આપણી વચ્ચે શ્રી કાલિદાસ બાપુ દેકાવાડા ગૌ ભક્ત શ્રી ઉપસ્થિત છે, એમના અભિવાદન માટે હું હિમાંશુભાઈ અગ્રવાલ, શ્રી દિલીપસિંહ એકલંગજી ગ્રુપ, હિમાંશુભાઈ અગ્રવાલ, શ્રી રામજી અયોધ્યા, શ્રી વિનસભાઈ એલેન્જા ગ્રુપ, શ્રી પરાક્રમ બાપુ હેપી ગ્રુપ, શ્રી વાઘજીભાઈ બી વોરા આસોપાલવ, શ્રી મેહુલભાઈ ગમારા ગ્રુપને શ્રી અનિલભાઈ અર્જુનભાઈ વાઘેલા, એમને વિનંતી કરું આપ કાલિદાસ બાપુ દેકાવાડાનું અભિવાદન કરશો. ઈકા બાપુનું અભિવાદન કરશો ઘનશ્યામભાઈ વણોદિયા, અજીતભાઈ પટેલ. પાદુકા પૂજન માટે નીરવભાઈ એમની ફેમિલી, પાદુકા પૂજન માટે નીરવભાઈ આપનો પરિવાર, પાદુકા પૂજન માટે નીરવભાઈ અને આપનો પરિવાર પધારશે. શંકરાચાર્યજી મહારાજ ભગવાન શ્રીનો સમય આપણી પાસે ઓછો છે, પાદુકા પૂજન માટે પધારશો. નીરવભાઈ ગજ્જર અને આપના પરિવાર કે જે સભ્યો પાદુકા પૂજન માટે આપ ઝડપથી મંચ ઉપર પધારશો. હરિ ઓમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુદેવતાભ્યો નમઃ. ઓમ અવૈત્રઃ વૈત્રો વા સર્વાવસ્થાંગતોऽપि વા યઃ સ્મેત પુંડરીકાક્ષં શવાય અભ્યંતરઃ શુચિઃ
त्रय्याचमनम् ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः हस्तप्रक्षालं गोविन्दाय नमः ऋषिकेशाय नमः यजमान भाले स्वस्तितिलकं कुर्यात् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्री जगद्गुरुताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यं हस्तो अर्घं मुखे याचमनीयं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मा दमुचियत अक्षता श्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रोमर्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपक्वाजा शुभकुणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गु हसः। ओम इदग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगुणग्गु स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं हरिः ओम। आरती दीजिए बैठ के। ओम जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः क्रुजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः। हरिः ओम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। પાદુકા પૂજનની વિધિ પછી હવે આપણે વિનંતી કરીએ દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ ભગવાન શંકરાચાર્યજી સ્વામીજી શ્રી સદાનંદજી સરસ્વતી મહારાજને કે આપ અમારા પરિવારજનોને આશીર્વચન આપો। અમે જગતગુરુ શ્રી ભગવાન શંકરાચાર્યજી સ્વામીજી મહારાજ શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજને વિનંતી કરીએ કે આપ અમને આશીર્વચન આપી અને અમને પાવન કરો। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन के पूर्व वृंदावली का पाठ होगा, तत्पश्चात महाराज श्री के आशीर्वचन। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु
श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गौमती तीरवासिनः श्रीद्वारकाधीश समाराधन मानसाः पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूष जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तरा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की धर्म सम्राट द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता गौ माता गौ माता द्वारकाधीश भगवान की भगवत पादाद्य शंकराचार्य की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान संत वृंद, कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, देवियों सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें यह समझना है सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू किसे कहते हैं और हिंदुओं का कर्तव्य क्या है, सनातनियों का कर्तव्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और संस्कार क्या है। यही विषय रखा गया है। हमारे पास जो निवेदन लेके आए थे नीरव भाई गज्जर, बड़ा उत्साही बालक है ये, और इसके मन में ये प्रेरणा हुई कि लोगों को मालूम पड़े कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, सनातन धर्म के मूल्य क्या हैं। तो देखें, एक बात ये समझ लीजिए कि किसी भी संस्कृति का अस्तित्व जब सुरक्षित रहता है जब हम उस संस्कृति के संस्कारों का और उस संस्कृति के धर्म का पालन करते हैं,
तभी वह उस देश की संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। देश कोई भी देश हो और कितना ही विकास कर ले, लेकिन यदि वहाँ की संस्कृति में दूषण आ जाता है, दोष आ जाता है, संस्कृति भ्रष्ट हो जाती है, तो उस देश का निश्चित रूप से पतन होता है। धर्म का पालन हम क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म का पालन करने से हमारी संस्कृति का, संस्कार का और देश का उत्थान होता है। कैसे उत्थान होगा? आध्यात्मिकता के बिना उत्थान हो नहीं सकता। आध्यात्मिकता कैसे आएगी? अध्यात्म विद्या से आएगी। अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। हमें आध्यात्मिक उत्थान करना है। रोटी कपड़ा मकान आपके पास हो गया है, लाइट बिजली सड़क ये सब पर प्राप्त हो गया है, फिर भी हम अशांत क्यों हैं? हमारी अशांति का कारण क्या है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया। ये प्रश्न मन में पैदा होना चाहिए ना। आ प्रश्न ઊભા થાય છે मन में कि नहीं થાય? अगर ઊભા થાય तो પછી એના કારણ ગોતો। શું કારણ છે એનો? कि सब कुछ मिलने के बाद, એટલે સરળ ભાષામાં વાત કરીએ તો निर्धन व्यक्ति दुखी છે। શા માટે દુખી છે? ધન નથી એટલા માટે દુખી છે। ધની શા માટે દુખી છે? कभी सोचा, चिंतन किया? धनी क्यों दुखी है फिर? इसलिए जब तक हम संस्कृति और संस्कारों की रक्षा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति क्या है? कहाँ से हमारा सनातन प्रारंभ होता है? सनातन संस्कृति का पहला आदेश क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति। माँ की सेवा करने वाले बनो। पहला आदेश उपनिषदों का प्रथम आदेश, माँ की सेवा करने वाले बनो, पिता की सेवा करने वाले बनो, आचार्य की सेवा करने वाले बनो, अतिथि की सेवा करने वाले बनो। उसमें सर्वप्रथम माँ, माता और पिता, माता पिता की सेवा करने वाले होना चाहिए। यदि माता पिता की सेवा करने वाले हम हो जाएं तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वृद्धाश्रम खोल क्यों रहे हो आप? शा माटे वृद्धाश्रम ઊભા करो छो? अरे अपने बच्चों को संस्कार दो कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। अगर माता पिता की सेवा का संस्कार बच्चों को दे दिया तो वृद्धाश्रम की कल्पना मस्तिष्क में आवश्यक नहीं, आएगी ही नहीं। ये क्यों आती है हमारे मन में कि हम अपने दादा दादी को, नाना नानी को ओल्ड घर में भेज दें, वृद्धाश्रम में मोकली दइए? ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी परंपरा में सबसे पहले कहा मातृदेवो भव, और ऐसा हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया। ध्रुव कुमार ने, भागवतनी कथा सांभळो छो तमे, ध्रुव कुमार ने ये करके दिखाया, आद्य शंकराचार्य जी ने करके दिखाया, नचिकेता ने करके दिखाया, भक्त प्रहलाद ने करके दिखाया। कथा तो सभी सुनते हैं। सुनीति नाम की माँ ने कहा, इस पिता की गोद में तू बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जब सुरुचि ने ये कहा तो छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव कुमार रोने लगा। अपने पिता की गोद में मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अपनी माँ के पास गया, सुनीति नाम था ना? हाँ, सुनीति सुरुचि। सुरुचि यानी अपनी रुचि के अनुसार शासन करना।
और सुनीति यानी सुंदर नीति के अनुसार जीवन चलाना, जीवन यापन करना, ये हमारे संस्कार हैं। सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक तो कहा है, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, भगवान की गोद में बैठो जो तुम्हारे पिता के पिता के पिता हैं। तुम्हारे पिता स्वयंभुव मनु और तुम्हारे पिता उत्तानपाद, उनके पिता स्वयंभुव मनु, उनके पिता ब्रह्मा जी, उनके पिता परमात्मा, उनकी गोद में बैठो। छोटे से बालक ने माँ की आज्ञा का पालन करके 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया, मातृदेवो भव सिद्ध किया। नचिकेता के पिता बाजस्रव ने यज्ञ किया, सर्वस्व दान यज्ञ कहते हैं उसे। सब कुछ दान दे दिया जाता है। पिता के मन में मोह आ गया और दान देते समय अच्छी अच्छी गाय अपने बेटे के लिए रखने लगे। नचिकेता नाम का छोटा सा बालक पिताजी के पास आया, पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? आनंदा नाम ते लोका, आनंद लोक की प्राप्ति करना चाहते हो, यज्ञ का फल चाहते हो, ऐसी गाय दान कर रहे हो जिन दान लेने वाले के उपयोग में ही नहीं आना है। पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया आनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ददत। जो अपने आप पानी भी नहीं पी सकती हैं, जो घास भी नहीं चर सकती हैं, जो बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे सकती हैं, जिनकी प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई है, जीर्णानी इंद्रियाणी, जिनकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, ऐसी गायें ब्राह्मणों को दे करके कौन से लोगों को प्राप्त करना चाहते हो? और पिताजी सब कुछ दान करना है तो माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति होती है संतान। तो मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ। कस्मई माम दास्यसीति, आप मुझे किसे देंगे? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, द्वितीयम तृतीयम होवाचो मृत्यवे त्वाम ददामीति, यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने विचार नहीं किया। अभी तक अब लोगों ने सुना है कि पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है हमेशा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पिता ने कह दिया मृत्युवे त्वाम ददामीति, मृत्यु को देता हूँ। ये पिता का धर्म नहीं है। नचिकेता विचार करने लगा, पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए। चला गया यमराज के पास। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर व्याख्यान है, एना माटे तो आखा दिवस जोइए तो एनी कथा थाय। तो फिर भी हम तो यहाँ ये बता रहे हैं कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। आज हमारा उद्देश्य है माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। 3 दिन तक यमराज के महल के बाहर बैठा रहा। 3 दिन बाद यमराज आए। उन्होंने कहा 3 दिन से तुम अनशन करके बैठे हो, 3 वरान वृणीश्चो, 3 वरदान मांगो। 3 वरदान मांगे, उसमें भी हम एक वरदान आपको सुनाएंगे बस। तो नचिकेता ने कहा यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि जब मैं यमलोक से लौट करके वापस पिताजी के पास जाऊं तो मेरे पिताजी आनंद से मुझे गले लगा लें और वो प्रसन्न दिखाई पड़ें। पिता की प्रसन्नता का वरदान मांगा, पहला वरदान पिता की प्रसन्नता का। जिस पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु लोक भेज दिया, यमराज के पास भेज दिया, वह बेटा अपने पिता के लिए क्या मांग रहा है देखिए आप। इसको कहते हैं पितृदेवो भव। पिता की सेवा करने वाले बनो। जिस पिता ने यमराज के पास भेज दिया उसके आनंद की प्रसन्नता का वरदान मांग रहा है नचिकेता।
दूसरे वरदान में अग्नियों का ज्ञान मांगा, तीसरे वरदान में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या की याचना की। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आप कथा सुनते हैं। बहुत कष्ट पहुंचाया प्रहलाद जी को दैत्यराज ने। अंत में दैत्यराज ने कहा कि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंबे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, नृसिंह अवतार धारण किया उन्होंने। क्रोध से आंखें लाल लाल हो गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी क्रोध की अग्नि से पूरा विश्व जल के भस्म हो जाएगा। प्रहलाद चरणों में गिर गए, लौट गए, उनके क्रोध को शांत किया। नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा तुमने हमारी बहुत भक्ति की है, वरदान मांगो। वरदान मांगो, क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु हमें आपके दर्शन हो गए, हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आप कहते हो कि कुछ चाहिए हमको, नहीं मानते हो। तो मेरे पिताजी ने क्षमा न किए जाने वाले आपके बहुत से अपराध किए हैं। दुरस्ताद दुरंदाद घात, अपराध, ऐसे अपराध किए हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। पितृदेवो भव, ये पितृ माता पिता की सेवा। जिस पिता ने जलती हुई आग में डाल दिया, पर्वत से पटक दिया, हाथी से कुचलवाया, राक्षसों से ताड़ना दी, नाना प्रकार के कष्ट दिए प्रहलाद को, लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा। मेरे पिताजी ने जो अपराध किए हैं उन अपराधों को प्रभु क्षमा कर दीजिए। ये पितृदेव, ये माता पिता की सेवा करने की संस्कृति। यहाँ कहाँ वृद्धाश्रम की कल्पना हो सकती है। हमारी संस्कृति ही नहीं है। महाराज दशरथ ने विचार किया, मेरी वृद्धावस्था आती है, श्री राम का राज तिलक कर देना चाहिए। तैयारी होने लगी। मंथरा ने कैकेयी को बताया। कैकेयी ने महाराज दशरथ के पास 2 वरदान उनके रखे हुए थे, वो मांग लिए। भरत को राज्य दिया जाए, दूसरा वरदान श्री राम वनवास को चले जाएं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए श्री राम वनवास चले जाएं। भरत जी मामा के घर से वापस आए, महल को सूना सूना देखा, पूछा माँ क्या हुआ है, पिताजी कहाँ हैं। पिताजी अपने लोक को चले गए। मनुष्य की जो गति होती है वो पिताजी की हो गई। बड़े भैया कहाँ हैं। बड़े भैया वनवास चले गए। क्यों चले गए। मैंने वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था। तुम्हें राज तिलक देना है और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दें। भरत को अच्छा नहीं लगा। भरत ने कहा, माँ तुमने ये क्या किया। हमारे प्राण को तो तुमने वनवास में भेज दिया और हमारा शरीर पांच भौतिक देह, ये हड्डी मांस का स्ट्रक्चर यहाँ अयोध्या में खड़ा है। नहीं माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। पेड़ काट तू पल्लव सींचा, मीन जान हित पानी उलीचा। झाड़ को काट करके पत्तों में पानी दे रही हो माँ, और मछली मर जाएगी ऐसा सोच करके सरोवर का पानी खाली कर दिया, तो मछली मरेगी कि जिंदा रहेगी। पानी के बिना तो मछली मर ही जाएगी। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए उसमें प्रमाण क्या है। हम मनमाना करते हैं कि शास्त्र के अनुसार करते हैं। हम मनमाना करते हैं कि गुरु के अनुसार करते हैं। ये बात समझनी चाहिए हमें। जब हम मनमाना करेंगे तो धर्म विरुद्ध आचरण होगा।
आप नदी किनारे खड़े हुए हैं, 2 साल का बालक नदी में डूब रहा है, आप छलांग लगाएंगे, बच्चे को निकाल करके घाट पर रख देंगे, अच्छा किया ना? ये करना चाहिए। नहीं निकालते तो बालक डूब के उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे दिन आप स्नान करने गए तो वहाँ एक मछली जब पानी पीती है तो पलटती है, तो मछली पलट रही थी पानी पीने के लिए। उसी व्यक्ति ने विचार किया मछली पानी में डूब के मर जाएगी, निकाल करके घाट पर रख दिया, मछली की मृत्यु हो जाएगी। आप क्या करते हो? क्या करना चाहिए? हर नियम हर स्थान पर लागू नहीं होगा। हर स्थान पर लागू होने वाला जो नियम है उसको शास्त्र कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं, उसको वेद कहते हैं, उसको पुराण कहते हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कहते हैं। उनके अनुसार ही हमें जीवन यापन करना पड़े तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है, ओल्ड घर की आवश्यकता ही नहीं है। ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? एकांगी होने का विचार आने लगा हमारे मन में। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। पहले परिवार के लोग होते थे, संयुक्त परिवार होता था, 10-10, 5-5 लोग होते थे, सबका भोजन एक साथ होता था, एक साथ परिवार की बहुएं भोजन निर्माण करती थी, एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे, आपस में चर्चा करते थे, आनंद आता था, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वो आनंद कहाँ चला गया? वो आनंद माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने से आएगा? भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी ने कहा, माँ हमको सन्यास लेना है। माँ ने कहा, बेटा कोई है नहीं, तुम अकेले हो, तुम सन्यासी बन जाओगे, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? पहले ये बात समझ लो कि सन्यासी को अंतिम संस्कार करना मना है। इसलिए सन्यासी जीवित रहते ही वृद्धाहोम कर देते हैं। सन्यास अपने आप अपनी पूरी उत्तर क्रिया कर देते हैं, जीवित में ही सब कुछ। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं आऊंगा माँ। तो जब उनकी माँ बीमार पड़ी, आर्यांबा, वृद्धावस्था में, तो योग दृष्टया विदित्वा आकाश मार्गेण दूर देशाद आगत्य, योग की दृष्टि से उन्होंने जाना कि मेरी माँ बीमार है, तो आकाश मार्ग से आए। उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, आकाश मार्ग से आए और जननी समीपम उपतस्थिरे, माँ के सामने खड़े हो गए। माँ ने शंकर को देखा, आंख में आंसू आए, मस्तक पर हाथ रखा। माँ ने कहा, बेटा तपस्या छोड़ करके आ गया? शंकर ने कहा, माँ प्रत्यस्त्राभिपरा हि तेंत समये प्राप्तुम समीपम तवो। माँ जाते समय आपको वचन दिया था, प्रत्यस्त्राभिपरा हि तेंत समये, वचन दिया था आपको कि आपकी मृत्यु के समय में रहूंगा, मैं आया। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। शंकर कह रहे हैं, आस्ताम तावदीयम प्रसूति समये दूर्वार सुलभ्यथा नैरुच्यम तनुशोषणम मलमयी सय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभार भरण क्लेशस्य यस्याक्षमो दातुम निष्कृति मुन्नतोपि तनयो तस्यै जनन्यै नमः। माँ, जब कोई भी माँ बच्चे को जन्म देती है, बेटा बेटी को जन्म देती है, तो हजारों करोड़ों शूल का दर्द उस माँ को होता है। 9 महीने तक कष्ट सहन करती है वो माँ, और 2-3 साल तक अपने बच्चे का भरण पोषण करती है। गरीब की माँ होती है, मकान अच्छा नहीं होता, झोपड़ी होती है, एक ही गादला होता है, एक ही ओसिका होता है, एक ही चादर होता है। माँ बेटे उस पर सो रहे हैं। 1 साल का 2 साल का बेटा है, ठंड का समय है, बालक बाथरूम कर लेता है, लघुशंका कर लेता है, गादला गीला हो जाता है। माँ बच्चे को उठाती है,
तो जहाँ सूखा है उस तरफ बच्चे को कर देती है, और जहाँ उसने पेशाब की थी उस तरफ गीले की तरफ खुद सो जाती है। दूसरा गद्दा तो है नहीं उसके पास। नई रुच्यम तनुशोषणम मलमयी सैया च सांबत्सरी। माँ ऐसा तू एक दिन नहीं करती, सांबत्सरी वर्षों तक ऐसा करती है जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ। तस्यै जनन्यै नमः। मेरी माँ, ऐसी माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। माँ का ऋण कोई 100 जन्म तक कभी नहीं चुका सकता। आस्ताम तावदीयम प्रसूति समये दूरबारसु लभ्य था। ये मातृ देवो भव यहाँ सिद्ध होता है। हमारे महापुरुषों ने अपनी माँ की सेवा करके ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अपने लिए तो सभी भोजन बना लेते हैं, अपने साथ भगवान को नैवेद्य रखना है, अतिथि को भोजन कराना है। गो माता को एक रोटी देना है, एक रोटी। गोग्रास कहवाए छे ना, गोग्रास हिंदुओं का धर्म है। अग्नि में अग्निहोत्र करना है, गोग्रास देना है, बलि वैश्य देव करना है, चीटी को आटा लोट डालना है, अतिथि को भोजन देना है। ये पंचयज्ञ हैं, पंचयज्ञ हैं गृहस्थाश्रम में। क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रतिदिन 5 पाप होते हैं। चुल्ली, पेषण, उपस्करा इत्यादि 5 पाप होते हैं। उसके लिए 5 यज्ञ का विधान किया गया है। गौ माता को एक रोटी, 1 चम्मच चोखा, आधी चम्मच दाल, इतना डाल करके जो भी बना है वो दे देना है। गाय को तो 1 मन चाहिए, 1 रोटी में उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है 1 रोटी मात्र दे देने से। क्यों कि ये गो पूजन है, ये गौ माता की पूजन है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की पूजा करने वाले बनो। हिंदू किसे कहोगे आप? बहुत मनुष्य हैं भारत विश्व में, 8 अरब हैं। કેટલા છે? 8 અરબ સંખ્યા છે આખા વિશ્વમાં મનુષ્યોની। હિન્દુ કેટલા છે? 100 કરોડ। તમે હિન્દુ છો એનો શું પ્રમાણ છે? पहला प्रमाण, हिंदू माता पिता से हमारा जन्म हुआ। उसका धर्म क्या है? उस हिंदू का धर्म क्या है? એટલે એની ઓળખાણ શું છે? गोषु भक्तिर भवेद्यश्च पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदूरिति स्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू का पहला लक्षण, ये हिंदू का पहला लक्षण। बहुत लक्षण सुना सकते हैं हम, बहुत लक्षण है हिंदुओं को। अन्नवादी, क्रियाद्वेषी, नोपस्थायी, नरुत्तरः, आहु तप्रपलापी च हीनः पंचविधि स्मृतः। जो हीन को दूषित करे, हिंदुओं को, हिंदू धर्म की निंदा करने वाले की जो निंदा करे, उसको जो दंड दे, उसको हिंदू कहते हैं। गो 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 प्रतिमा सेवी, गाय की सेवा करने वाला, मूर्ति की पूजा करने वाला, वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सबई हिंदूरिति स्मृतः। विधि निषेध का पालन करने वाला, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने वाला, गौ और प्रतिमा की सेवा करने वाला, हिंदू धर्म में निष्ठा रखने वाला, राष्ट्रभक्ति जिसमें विद्यमान है, सनातन धर्म की जो सेवा करता है, उसे हिंदू कहते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। 7 नदियों में जाकर के जो अपने जीवन में स्नान करता है, उसे हिंदू कहते हैं। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। प्रातः काल उठ करके धरती को प्रणाम करता है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, सवेरे सवेरे नमस्कार करता है और इन 7 चिरजीवियों का स्मरण करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये सब हिंदू होने के लक्षण हैं। जो बेल की पूजा करता है,
तुलसी माता की पूजा करता है, वृक्ष की पूजा करता है, बट की पूजन करता है, पीपल की पूजन करता है, उसे हिंदू कहते हैं। ये सब हिंदू होने के प्रमाण हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में माता पिता, ये कहाँ से आई संस्कृति? ये विदेशों से आई। आप लोगों में से जो लोग विदेशों में पैसा कमाने के लिए गए तो अच्छा किया, लेकिन जो वहाँ की संस्कृति ले आए, वहाँ का कल्चर ले आए, उसी से हमारी हानि हुई है। अंग्रेजों ने 2 साल यहाँ निवास किया, उन्होंने अपनी संस्कृति हम पर थोपने का खूब प्रयास किया, कुछ सफल भी रहे। उन्हीं के संस्कार कुछ हमारे उदारवादी नेताओं में आए, लिबरल नेताओं में आए, उन्हीं की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वर्णाश्रम व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, ये और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सब हिंदुओं को नष्ट भ्रष्ट करने के कुचक्र हैं। इन कुचक्रों से हिंदुओं को अपनी रक्षा करनी चाहिए। हम लोग दिन रात घूम करके यही सावधान कर रहे हैं लोगों को। सावधान होने की आवश्यकता है। किस तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पतन किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। ये तो हमारा धर्म है, सनातन है, परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित है, शाश्वत धर्म है, कोई इसका जन्म देने वाला नहीं है, इसलिए सुरक्षित है। विधर्मियों के इतने आक्रमणों के बाद भी आज हम भारत में 100 करोड़ बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के 200 साल के शासन के बाद भी, मुगलों के शासन के बाद भी हम सनातन धर्मी सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमारी संस्कृति का हम रक्षण परिपालन कर रहे हैं, लेकिन इसका पतन ना हो, इसमें कमी ना आए, न्यूनता ना आवे, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। और इसको रखने के लिए कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी आवश्यकता है कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी जो कुलदेवी है, कुलदेवता है, उसकी पूजा करनी है हमें। हमारी जो पंचदेवोपासना है, वही उसी की पूजा करना है। हमारे जो देवादिदेव भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति भगवान द्वारकाधीश हैं, वही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ कोई उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता और ना कोई सर्वोपरि हो सकता। केवल एकमात्र सर्वोपरि हैं तो शेषनाग पर सैया पर विराजमान होने वाले भगवान विष्णु, जिन्होंने राम के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने 24 बार अवतार लिया, जिन्होंने शक्ति को उत्पन्न करके नवदुर्गा के रूप में दर्शन कराया। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरीत चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। एक ही तत्व है, 9 देवियों में विभाजित हो गया। एक ही तत्व है, वैकुंठ में बैठा हुआ अयोध्या में जाकर के 4 रूप में दर्शन दे रहा है। राम, श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, 4 भाई। तत्व एक है, 4 भाई। एक ही तत्व है, श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में दर्शन दे रहे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है। इसकी रक्षा में हमें तत्पर रहना चाहिए। और तत्पर रहने का अर्थ है कि हमें भगवान का अवतार क्यों होता है, विचार करो, भगवान का अवतार क्यों होता है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान, आप भय प्रगट कृपाला गाते हैं ना आप लोग, अंत में क्या है? विप्र धैन शुर संत हित लीन मनुज अवतार। इनके लिए भगवान ने अवतार लिया है, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, माँ बहनों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये भगवान का उद्देश्य है।
उन्हें क्या आवश्यकता है? कंस को तो वहीं बैठे बैठे उसका उद्धार कर सकते थे, और बैकुंठ में बैठे बैठे रावण का उद्धार कर सकते थे परमात्मा। वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने महाराज दशरथ को निमित्त बनाया। जगत के पिता ने दशरथ महाराज को अपना पिता बनाया, अवतरित हुए और मनुष्यों जैसी लीला की। मानव लीला करके यह उन्होंने बताया कि मनुष्यों को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य होकर के मानव धर्म का पालन करते हुए उन्होंने बताया मनुष्यों को क्या करना चाहिए। वेद प्रणीहितो धर्मः धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमु। क्या बताया? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। धर्म देखना है, श्री राम को देख लो, धर्म की साक्षात मूर्ति। धर्म देखना है, परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करें। ये हमारे धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। इसलिए इनकी मूर्तियों को आप लोग मंदिर में बिठाते हैं, उनके आदर्श को अपने अंतःकरण में उतारते हैं, और अंतःकरण में उतार करके आपके जो बच्चे हैं, तुम्हारी जो आवनारी पीढ़ी है, उस आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को संस्कार देने के लिए मंदिरों की व्यवस्था है, धार्मिक स्थानों की व्यवस्था है, धर्म के जो क्षेत्र हैं हमारे, उनकी व्यवस्था है। इसलिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों की रक्षा पर बहुत विचार किया गया है। हमारी प्राचीन परंपरा क्या थी? आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में वर्णाश्रम का कहीं नाम ही नहीं, वृद्धाश्रम का कहीं नाम ही नहीं है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रह करके गुरुकुल में अध्ययन करना है, यही व्यवस्था है। पहला आश्रम 25 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करके, स्कूल कॉलेज हो गए हैं आजकल, 25 वर्ष तक वहाँ निवास करना है। क्या हमारी संस्कृति थी? पूरे विश्व में 1818 में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ 10,000 गुरुकुल थे। 1-2 नहीं, 10,000, और एक गुरुकुल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। और उन गुरुकुलों में 1-1 लाख गौ माता निवास करती थी। यज्ञशालाएं होती थीं, यज्ञशालाओं में हवन होता था, और यज्ञशाला का हवन आहुति वेद लक्षणा गौ माता के शुद्ध घृत से दी जाती थी। ये परंपरा है हमारी। इस परंपरा को नष्ट किया विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने नष्ट किया। बचा खुचा आज के जो उदारवादी नेता हैं, सभी को नहीं कह रहे हैं, जो उदारवादी नेता हो गए, जो कहते हैं कि जात पात कुछ नहीं होता है, जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, धर्म के बिना रह ही नहीं सकते कोई। कई जगहों में चुनाव हुए, शपथ लेते हैं, सब कहते हैं कि हम ईश्वर की नाम की शपथ लेते हैं, कोई कहता है संविधान के नाम की शपथ लेते हैं, कोई कहता है धर्म के नाम की शपथ लेते हैं। तो आप जिसकी शपथ ले रहे हैं वो तो आपका धर्म हो गया ना, फिर धर्मनिरपेक्ष कैसे, सेकुलर कैसे हुए? फिर शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के बिना कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। अर्थम बुद्धा शब्द रचना कर्तव्या, नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्य उच्चारणम फलति। अर्थ ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण नहीं होता है, निष्फल जाता है, बेकार जाता है। ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे कि खरगोश के सींग लाओ, खरगोश के सींग लाओ। खरगोश के सींग होते हैं? कोई बता सकता है? खरगोश क्या बोलते हैं गुजराती में? ससरू, ससलू, ससरू। खरगोश के सींग होते ही नहीं, ये अशब्द है ना। खरगोश के सींग लाओ ऐसा कोई बोल दे, ये अशब्द है। इसी तरह से धर्मनिरपेक्ष शब्द भी अशब्द है। बिना धर्म के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि कर्तव्य पालन भी धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कि नहीं करोगे? आप नौकरी करोगे तो आपके बॉस ने, आपके मालिक ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना आपका धर्म है। तो धर्म के बिना कहाँ रहे? तो पहला धर्म था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। धर्म की शिक्षा बंद कर दी गई।
तो माता पिता की सेवा क्यों करना चाहिए इसका अर्थ ही नहीं मालूम है। कुछ लोग माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि एना पची एनी संपत्ति मने मड़ी जाए। आ तो मड़वानी छे, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, दाय भाग है वो तो मिलना ही है तुमको। लेकिन संपत्ति के लोभ से अगर माता पिता की सेवा करोगे तो धर्म का फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। पैसा मिल जाएगा। पैसा कमाने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ दिए, इनके द्वारा पैसा कमाओ, या प्रारब्ध, प्रारब्ध से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। 1 साल का बेटा करोड़पति के घर में पैदा हुआ, 1 साल का बेटा हो गया और करोड़पति का शरीर नहीं रहा, तो 1 साल का बेटा बिना कमाई किए करोड़पति हो गया कि नहीं हुआ? विचार करता ज नहीं। बिना कुछ किए करोड़पति हुआ कि नहीं? हो गया ना। फिर पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, ये वो अर्थ नहीं। ऐसा औंधा अर्थघटन नहीं करना, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। तो दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में कब से कब तक रहना है? 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थाश्रम कहाँ से प्रारंभ होता है? 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। 50 से 75 तक पति और पत्नी दोनों मन से वैराग्य लेकर के और अपनी संतान को कारी भारी सौंप करके भगवान के भजन करने में मन लगाने लगें, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं। और 75 वर्ष की अवस्था में यदि वैराग्य आ जावे तो संन्यास स्वीकार कर ले। जब ये वर्णाश्रम व्यवस्था का हम पालन करेंगे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। ये व्यवस्था हमने छोड़ी, इसको आश्रम व्यवस्था कहते हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था है जो आप लोग जानते हो, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके बाद जो कहते हैं कि हम केवल मानव धर्म मानते हैं, हम चारों व्यवस्था नहीं मानते, तो मानव धर्म की शिक्षा तुम्हें कौन देगा? वो भी हम ही देंगे, हमसे ही मिलेगी ना तुम्हें। या तो धर्म ग्रंथों से मिलेगी या धर्माचार्यों से मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर स्त्री धर्म आएगा, फिर पुरुष का धर्म आएगा, फिर पिता बन गए आप तो पिता का धर्म आएगा, पति बन गए तो पति का धर्म आएगा, आपने किसी से विवाह कर लिया तो पत्नी का धर्म लागू हो जाएगा। ये सब विशेष धर्म हैं। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। आप अपने नौकर से कहें कि बाजार से फल ले आना, तो बाजार में तो 15 प्रकार के फल हैं, कौन सा फल लाएगा? तो आप कहेंगे केरी ले आना, तो केरी विशेष हो गया। 15 रेकड़ी में जो 15 तरह के फल हैं उनमें केरी विशेष हो गया, तो केरी लाएगा, वो आम लेकर के आएगा। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म सभी के लिए है, उसके 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये सामान्य धर्म सभी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति का हो, सभी के लिए ये सब धर्म 10 धर्म हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मनुष्य मात्र के लिए 10 धर्म है, मानव मात्र माटे छ। विशेष धर्म क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये विशेष धर्म है, विशेष लागू हो जाएगा यहाँ। तो यदि हम वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है हमारे माता पिता को कहीं जाने की। लेकिन जब हम वर्ण व्यवस्था का त्याग करते हैं, स्वधर्म का त्याग करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हैं, जहाँ जहाँ आप विकल्प खड़ा करेंगे वहाँ वहाँ धर्म की हानि होगी। इसलिए धर्म हानिर्न कर्तव्या, कर्तव्यो धर्म का पालन करना चाहिए, कभी धर्म की हानि नहीं करना चाहिए। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था रही है
इसलिए शासन वालों ने भी वृद्धाश्रम को ग्रांट देना शुरू किया। मध्य प्रदेश में हमारा भी एक आश्रम है, वहाँ भी सरकार ने वृद्धाश्रम खोल दिया है। तो सरकार भी उनको बढ़ावा देती, सरकारी शिक्षा नहीं देती कि संतान को कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। वृद्धाश्रम को ग्रांट देते हैं तो उनको उत्साहवर्धन होता है। विदेशों में जो गए हैं वो वृद्धाश्रम, वहाँ माता पिता का कोई अर्थ ही नहीं जानते हैं। बच्चों को जन्म दे दिया और छोड़ दिया, उनमें भावना ही नहीं है, फीलिंग नहीं है अधिकांश लोगों में। और वहीं की शिक्षा लेकर के जो यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के वृद्धाश्रम खोल करके उनको बढ़ावा देते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से क्या मिलता है, करके देखोगे तभी पता चलेगा। मिश्री मीठी होती है, कैसे मालूम पड़ेगा? मिश्री खाओगे तभी पता चलेगा। माँ की चरण सेवा से क्या प्राप्त होता है, माँ की सेवा करके देखोगे तभी मालूम पड़ेगा कि माँ की सेवा का फल क्या है। माँ की सेवा किसे कहते हैं? हाँ, मातृ दिवस है आज। अच्छा, ये नहीं मालूम था हमको। अरे माता का रोज दिवस है आज। क्या रोज माता की पूजा करो, प्रतिदिन पांव पखारो, चरणोदक लो। हाँ, माता के जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता मनुष्य का। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य, शंकराचार्य, जितने भी हैं महापुरुष, जितने भी आचार्य हैं, सब माँ से ही तो आए हैं। बिना माँ के कहाँ आगमन होगा? किसका आगमन होगा बिना माँ के? इसलिए हमारी संस्कृति मातृदेवो भव का उद्घोष करती है। इसमें हमें उसका पालन करना चाहिए। और धार्मिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। माता पिता की सेवा न करने का जो कारण है, उसका कारण है कि धार्मिक शिक्षा का अभाव। स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। जब धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो अपने आप मालूम पड़ेगा कि माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए। कौन बताएगा आपको? स्कूलों में, कॉलेजों में धर्म की शिक्षा नहीं है। गुरुकुलों की व्यवस्था शासनों के द्वारा नष्ट कर दी गई है। जो पाठशालाएं बची हैं उनमें सरकारों ने अपना सिलेबस डाल दिया है। तो वहाँ भी केवल कुछ जो गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं, संस्कृत के परंपरा से वहाँ अध्ययन होता है। ये बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा की कमी के कारण हमारे बच्चों में धार्मिकता नहीं आ रही है। तो धर्म की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं और जो शासन के अधीन हैं, वो शासन से मुक्त होना चाहिए। शासन को, सरकारों को मठ मंदिर की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हो और मंदिर की व्यवस्था धर्म के अनुसार होती है। तो जिनको धर्म ज्ञान है उनकी जिम्मेदारी में मठ मंदिरों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक स्थान व्यापार का केंद्र नहीं हो सकते। वहाँ व्यापार नहीं करना है, वहाँ धर्म की शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। मंदिरों में जो आवक होती है, दान पेटी में पैसा आवे छे ना, डब्बा में नाखो छो तमे लोग। डब्बा का जो पैसा है, रसीद में पहुँच का जो पैसा है, उसके द्वारा गौशाला का निर्माण होना चाहिए, पाठशाला का निर्माण होना चाहिए, यज्ञशाला का निर्माण होना चाहिए, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण होना चाहिए। उसी मंदिर वाले ज़िले में, जिस ज़िले में जो मंदिर है, उस ज़िले का उत्थान, संस्कृति के उत्थान के लिए उस मंदिर की इनकम से, आवक से होना चाहिए। सरकार को मंदिरों के रुपयों का लेने का कोई अधिकार नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था शासन से भी हम बात कर रहे हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में क्यों लेती है? और अगर लेते हैं तो सभी धर्म
जितने भी धर्मावलंबी हैं सबके धर्म स्थल को स्वीकार करें। मस्जिदों पर भी सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, गिरजाघरों पर भी हस्तक्षेप होना चाहिए। केवल हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो ये इसके लिए हिंदुओं को सबको एक होना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के गौ माता के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, स्कूलों में धर्म की शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए, मंदिर शासन से मुक्त हो इसके लिए सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अन्यथा ये नेता लोग हमारे ऊपर अन्याय करते ही रहेंगे। अंग्रेज़ों से हमने मुक्ति पाई, अंग्रेज़ों के अन्याय से मुक्ति पाई, मुगलों के अन्याय से मुक्ति पाई। सरकारों का अन्याय भी हमें सहन नहीं करना है, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए संतों को। जो संत सत का पालन करते हैं, संत क्यों बने हैं हम आप? जितने भी संत महात्मा हैं पूरे देश में, उनका महात्मा होने का उद्देश्य क्या है? संत होने का उपदेश क्या है? संत का लक्ष्य क्या है? એટલે टारगेट શું છે એનો? सत्य की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति करना। सत्य की प्राप्ति में जिन महात्माओं ने सुख नहीं देखा, वो संत, वो महात्मा सत्ता के गुलाम हो गए। सत्ता के गुलाम होने के कारण आपके धर्मस्थल सरकार के अधीनस्थ होते जा रहे हैं। इसलिए इन बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। 78 साल से आप लोग देख रहे हैं, आपके सयाने माता पिताओं ने देखा, हम लोग भी देख रहे हैं, हिंदुओं के विरुद्ध ही सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई हमें स्वयं ही लड़नी चाहिए, स्वयं ही। और वो अधिकार हमारे पास है, वो अधिकार आपके पास है, उस अधिकार का प्रयोग उपयोग हमें करना चाहिए। उसको प्रयोग उपयोग करने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, एकता की आवश्यकता है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ, करणी सेना खड़ी हुई। करणी सेना ने कहा हम ब्राह्मणों का अत्याचार सहन नहीं करेंगे, है ना। ग्वालियर की घटना है, कहीं कहाँ की घटना है, 6 महीना पहले की बात है। कि ब्राह्मण की बात नहीं, किसी पर भी अत्याचार हो, ब्राह्मण पर हो, क्षत्रिय पर हो, वैश्य पर हो, शूद्र पर हो, हिंदू मात्र पर कोई अत्याचार करे, सारे हिंदू एक हो जाओ। किसी की हिम्मत नहीं हमारी ऊपर आंख उठा करके देख ले। लेकिन एकता की कमी के कारण अलग अलग जलती हुई लकड़ी धुआड़ा करे छे, જ્યારે ભેગા થઈ જાય ना तो होलिका दहन થઈ जैसे। इसलिए एक होने की आवश्यकता है। आप एक मुट्ठी बनाएंगे, ये उंगली अलग अलग है, उंगली से किसी को आप मारोगे चोट नहीं लगेगी, लेकिन मुक्का बना लोगे तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। इसलिए एकता की आवश्यकता है। संतों को भी एक होने की आवश्यकता है। और अयोग्य लोगों को जगत गुरु बनाने की परंपरा जिन्होंने प्रारंभ की है, ये भी एक संतों में बहुत बड़ा दोष आ रहा है। सबको जगत गुरु होना है, कहीं आवड़तो નથી, ज्ञान छे नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, जगत गुरु होना है। जगत गुरु નો अर्थ શું છે જાણો છો? जगत गुरु એટલે શું? एक गांव के लोग तुमको गुरु नहीं मानते, तुम जगत गुरु कैसे हो गए? नहीं, विचार करो। सवेरे हमने कहा महाराज से, एक गांव के लोग, एक गांव के लोग कितने, एक गांव में कितने लोग होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 छोटे गांव में। एक गांव के लोग तुमको गुरु नहीं मानते, तो जगत के गुरु तुम कैसे हो गए? क्या हमारे पास उत्तर है? हमसे कोई पूछेगा कि आप कैसे, तुम्हारे पास इन उत्तर थे, लेकिन उत्तर हम उसी को देंगे जो पूछेगा। अभी तो उनसे पूछो जो जगत गुरु बन रहे हैं पैसा दे दे करके। नकली जगत गुरु, जो असली हैं वो ठीक हैं, जो परंपरा से हैं, जिनका गुरु जगत गुरु, उनके गुरु जगत गुरु, उनके जगत गुरु एनाश्चो, जो परंपरा से आ रहे हैं वही जगत गुरु हैं। मनमाना थोड़ी चढ़ेगा कि 10 किलो चांदी दे दी, आधा किलो सोना दे दिया, 10 लाख रुपया दे दिया और जगत गुरु टाइटल ले लिया। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है। इसलिए इन सबसे बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ये सब विभाजित करते हैं, हमको विभाजित करते हैं। ब्राह्मणों का ग्रुप है, कई ब्राह्मणों ने कई ग्रुप बना लिए,
क्षत्रियों ने कई बना लिए। भैया एक हो जाओ, एक नगर के तो एक हो। अहमदाबाद में 10-11 अध्यक्ष हैं ब्राह्मणों के, सब एक हो जाएं तो कोई ब्राह्मणों की तरफ देखे ना आंख उठा करके, लेकिन एक नहीं होते हैं। समाज जब तक समाज सुदृढ़ कब होगा? जब एकता होगी। और अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करोगे? एना माटे शू फार्मूला छे? उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। एक हो सकते हैं हम, होना नहीं चाहते हैं। क्यों? हम अपने को ही ऊपर उठाना चाहते हैं। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम नश्यति। वृंद माने समूह, जहाँ सभी नेता हो जाते हैं, जहाँ सभी सरपंच हो जाते हैं, जहाँ सभी अपने आप को मंत्री मानने लगते हैं, वो समूह, वो जाति, वो व्यवस्था वो नष्ट हो जाती है, वो गांव नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग इसलिए हम पर आक्रमण करते हैं। हम एक नहीं होते। समझ गए वो? भारत का बंधारण सूचे, भारत का बंधारण क्या बोलता है? जिसके पास बहुमत है वही राजा है। हम एक क्वेश्चन प्रश्न मुँह की न जाऊँ छूँ, 50 साल बाद कौन राजा बनेगा विचार कर लो। पहले हमारा स्लोगन समझ लो, संख्या के बल पर हिंदुओं पर शासन करने की योजना बनाई जा रही है। 50 साल के बाद क्या होगा विचार कर लो। ये बात, डंडे के बल पर अब कोई जीत नहीं सकता। हमारी सेना, हमारे देश का रक्षा मंत्रालय इतना मजबूत है कि किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश पर आक्रमण करने की। तब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे देश की कमजोरी क्या है? कमजोरी बंधारण में है कि जेना पासे बहुमत छे वही राजा होगा देश का, वही देश का राजा होगा। अपनी संख्या बढ़ाओ। हिंदू अपनी संख्या कम कर रहे हैं और जो हम पर शासन करना चाह रहे हैं वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इतने में समझ में आ जाए तो समझेंगे हम कि आप लोगों में बुद्धिमानी आने लगी है। बहुत बहु विचार करवानी आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। हमारी माने हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, हमारे भविष्य की रक्षा होगी, हमारी आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी जब हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए बहुत अच्छे इस समारोह में आज हम सब लोग शामिल हुए हैं। इसमें हमारी जो मुख्य उपदेश है उस उपदेश का फल ये है कि धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार पर हम दबाव दें, उनसे आग्रह करें कि हमारे बच्चों को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त हो। माता पिता की सेवा का संस्कार बच्चों को दिया जाना चाहिए। तीसरा, मंदिरों की व्यवस्था सरकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए, संतों महंतों ट्रस्टों के द्वारा होना चाहिए। और मंदिरों की आय से गौशाला, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल और औषधालय आदि चलना चाहिए। और तीसरा एक और है कि प्राचीन जो मंदिर हैं, जो हजारों साल सैकड़ों साल पुराने हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जो आय वाले मंदिर हैं वो सरकार ने ले लिए, पुराने मंदिरों की कोई व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये भी दुरभिसंधि है हमारे साथ। और चौथा, हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन का स्थान नहीं बनाना चाहिए। हमारे तीर्थों में धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है। वहाँ जाने पर हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। वहाँ जाने से हमारी धार्मिकता में वृद्धि होनी चाहिए। फरवा माटे घूमने के लिए तो गोवा है ना, गोवा, शिमला, कहाँ जाकर जम्मू कश्मीर कहाँ जाते हो तुम लोग। और पैसा हो गया सिंगापुर चले जाओ, जहाँ जाना। हमारी नीति में तो विदेश यात्रा मना है। हमारे शास्त्रों में विदेश यात्रा की मनाही है। इसलिए मनाही है, बहुत कारण है उसके, बहुत कारण हम सुना सकते हैं। लेकिन जिनको घूमने फिरने के लिए जाना है उनके लिए तीर्थ स्थान का उपयोग मत करो। तीर्थ स्थान तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए।
आप द्वारका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तिरुपति जी जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, श्रृंगेरी जाएं, रामेश्वरम जाएं, जो तीर्थ स्थान है जहाँ तुम्हारी श्रद्धा छे, जहाँ तुम्हारी विश्वास श्रद्धा विश्वास छे, वहाँ जाओ, लेकिन वहाँ तीर्थ भावना से हम जाएं। वहाँ की रोड, वहाँ की बिजली, वहाँ का पानी हमें प्राप्त हो, ये विकास होना जरूरी है, लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ये भी एक हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नाश हो जाता है। भगवान का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के जब पाप करेंगे तो वज्रलेपो भविष्यति, बहुत बड़ा पातक होगा। ये हमारी धार्मिक व्यवस्था है, हमारी भारतीय संस्कृति सदाचार प्रधान संस्कृति है। उपासनावाद में पहले आचार विचार, पहले स्नान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, चांदला करो, सिखा रखो, चोटी रखो, अधिकार है, जनेऊ की परंपरा है तो जनेऊ पहनो, धारण करो जिनके घर में परंपरा है। ये हमारे संस्कार हैं। उसके बाद देवी देवता की आराधना करना चाहिए। जब हम शुद्ध होंगे, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्त्या प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों का जब हम पालन करते हैं तब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो हमारे मन मंदिर में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, स्वर्ग जावा माटे दादरा नहीं, जेना उपयोग करीने तमे स्वर्गनी प्राप्ति करशो। कौन बताएगा स्वर्ग जाना है? हमारे धर्मशास्त्र बताएंगे, तुम्हारा गुरु ही बताएगा, तुम्हारे यहाँ क्षेत्र में निवास करने वाला संत महात्मा ही बताएगा कि स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए सत्संग, संतों का सत्संग करते रहना चाहिए। प्रतिदिन हमारे घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, भागवत का पाठ होना चाहिए, जो महाभारत के शांति पर्व का पाठ होना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, 18 पुराण है हमारे पास, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जेना ऊपर तुम्हारी श्रद्धा छे इना पठन पाठन प्रतिदिन होना चाहिए। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं। इन अंगों की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे आप हाथ की रक्षा करते, जैसे आँख की रक्षा करते, जैसे कान की रक्षा करते हो, इसी तरह से आप धार्मिक अंगों की, धर्म के जो क्षेत्र हैं, धर्म के जो उपाय हैं, धर्म के अंग उपांग हैं, उनकी जब हम रक्षा करेंगे तब हमारी रक्षा होगी। धर्म का पालन ही हमारी रक्षा करता है। कार्यक्रम में आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। इतनी संख्या में आप लोगों ने एकत्रित होकर के और अपनी संस्कृति सनातन को श्रवण करने का, संतों का, सभी महात्माओं का, बापुओं का आशीर्वाद लिया। इसके लिए हम नीरव भाई गज्जर और उनके सहयोगी जिन लोगों ने साथ दिया होगा, सब लोगों, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नीरव भाई गज्जर 6 महीने से लगे हुए थे कि बापू ये कार्यक्रम करना है। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी भावना अच्छी है, ये अवसर मिला, अवसर का लाभ लेना चाहिए। मनुष्य का वह दिन, वह समय अच्छा होता है जब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। यही जीवन की सार्थकता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने का एक धर्म है। उस धर्म का पालन जब हम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। वही आध्यात्मिक शक्ति सनातन धर्म कहलाती है, और वही सनातन धर्म हमारे देश का, हमारे भारत देश का, हिंदुस्तान का धर्म है। इसलिए सनातन धर्म शाश्वत है। इसकी सत्यता को पहचान करके हमें उसका पालन करते रहना चाहिए। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश और भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव। ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યજી મહારાજ સ્વામીએ આપણને ખૂબ સરસ રીતે આપણને જે આપણો ધર્મ છે, સ્વધર્મ છે, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ છે, વર્ણ વ્યવસ્થા છે, આ બધી જ વ્યાખ્યાઓને ને આપણા જીવનના, આપણા સંબંધોના, આપણે સંબંધો કેમ મજબૂત કરી શકીએ, પરિવાર કેમ ટકશે, ધર્મ કેમ ટકશે, એક એક ઝીણી ઝીણી વ્યાખ્યાઓ સાથે આપણને આપણા સ્વધર્મનું જ્ઞાન આજે એક અમૃતવાણી દ્વારા સંબંધોનું રિચાર્જ આવા ટાઇટલ નીચે ખૂબ સરસ એવું આપણને અમૃતવાણીનો આ લાભ મળ્યો છે. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર આવો એક કાર્યક્રમ થયો અને સ્વામી શ્રી ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યજી સ્વામીએ આપણને આ અનુમતિ આપી કે હું આવીશ, એ બદલ પણ અમે દ્વારકા શારદા પીઠના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. સૌ આપણે જનતા વતી આભાર માનીએ, સૌ વતી તાલીઓથી અભિવાદન કરીએ. એમને બીજા એક કાર્યક્રમમાં આશીર્વચન આપવા માટે જવાનું હોય. આપણો કાર્યક્રમ પછી ચાલુ જ રહેશે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જય વિશ્વકર્મા. આપે અમારો આ વિડીયો જોયો, કેવો લાગ્યો? અમારી ચેનલ વિશે આપના અભિપ્રાય અમને દર્શાવેલ નંબર પર મોકલી આપવા વિનંતી. અને વિશ્વકર્મા વંશજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. અને આપના વ્યવસાયની જાહેર ખબર આપી અમારો ઉત્સાહ વધારવા વિનંતી. હું ભવિષ્ય મિસ્ત્રી, વિશ્વકર્મા વંશજ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.